Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to learn about the lac operon. Firstly, we will discuss about the gene regulations, what are the types of genes and what level it is regulated in prokaryotes and eukaryotes. Then I will discuss about the lac operon and I will discuss in very simple way through which you can learn the lac operon and you will solve the question. You know, this is very important topic in our genetics, and genetics is one of the most conceptual and wettest topic in the class 12th means NEET examination. So we are going to start about the concept of gene. First of all, one point is that the gene on and off means we have to means suppose this is the one gene is located in the chromosome and this is also a gene located in chromosome. When it is off and when it is off, I am going to try to understand that. First of all, DNA undergoes the transcription and made the mRNA, and if mRNA is fully formed and after the translation protein is formed, then mRNA undergoes protein formation by the process of translation. Then the protein is formed. It means this gene is expressed, means gene is on. When the gene is off, then the no mRNA formation take place, means no translation and no protein formation, means gene is actually off. And we have to change the gene sequence, means gene regulation. On and off process is known as gene regulations. So this is the point. Now we are going to discuss about the two types of the genes, means first is the consecutive genes and second is the non-constitutive gene. So constitutive gene is the housekeeping gene and always remains active, means constitutive means always off and their products are constant need for cellular activity, means whatever their products are always constant, means gene for glycolysis. You know, glycolysis process always take place in our body all the time, so there is no need for regulation of constitutive genes. Non-constitutive genes is the smart genes and luxury genes. These are the smart genes. We have to regulate them. You know, many smart people become overthinking, so we have to regulate that type of the people. So gene is also like that. Non-consecutive genes not always active, means we have to take the gene regulation, means once we off, once we off on. Okay, their products are not constant needed for the cellular activity. Their products are non-constant. This is the two types, means gene regulation is required for the non-consecutive genes. These are the two type, in inducible and repressible. If gene is off and we have to on this gene then this is inducible gene. If gene is off on already on and we don't want to that type of product, we have to off that gene, then this and we have to off that gene, then we know, then this type is known as repressible. मतलब जीन जो पहले से ऑफ है उसको इंड्यूस करके ऑन करना क्या होता है, इंड्यूसेबल जीन्स, एंड जीन जो पहले ऑन था उसको ऑफ करना रिप्रेसेबल, मीन्स जो काम हमें नहीं चाहिए वो उसको ऑफ करना, मतलब रिप्रेस करके ऑफ करना. और इंडिसेबल जीन्स का एग्जांपल है लैक ओपेरॉन एंड रिप्रेसेबल जीन का एग्जांपल है टीआरपी ओपेरॉन. नाउ we are going to discuss about the gene regulation in the prokaryotes. Predominant site for the gene regulation at the transcriptional initiation site. This is the important question, may be asked in the examination. So at which site, transcriptional site, we have to regulate the genes, and in mechanism, its mechanism in prokaryotes founded by Francis Jacob and Francis Monod, worked on which bacteria? E. coli bacteria. So this is the important point, we have to remember this. What is operon? Operon is the group of the genes which related the function on the same chromosome DNA act as a regulatory unit called operon. This is the operon, मीन्स दिस इज द ग्रुप ऑफ द जीन. ये जीन का ग्रुप होता है, ठीक है, जिस और इस सबका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है एक सेम क्रोमोसोम पे. एक ये क्रोमोसोम हुआ, ठीक है,
मीन्स एक क्रोमोसोम पे ये जीन जो है, ठीक है, ये देखो ऐसे, ये क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जीन, यहाँ यहाँ हर जगह जीन जो प्रेजेंट होता है आपस में रिलेटेड होता है, ठीक है। कैसे रिलेटेड होता है? ये इंड्यूसेबल जीन है, ठीक है, इंड्यूसेबल जीन ये इंड्यूस करता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को। ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है। अगर यहाँ जीन कोई जाके जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोमोटर पे मैं ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि प्रोमोटर पे जुड़ता है इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। और ऑपरेटर पे अगर कोई भी चीज जुड़ जा रहा है, ठीक है, रिप्रेसर अगर जुड़ जा रहा है ऑपरेटर पे, तो ये आगे का प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो in operon many genes are involved. One regulatory gene, this is the regulatory gene, I is known as regulatory gene, one of the promoter gene and one operator gene, and more than one structural gene cistron, structural gene ZYA like a structural gene. So example of operon, there are many examples which is important here, and you have to learn because this is the given in the NCERT only the names and only the explanation I will give you lac operon which is given in the NCERT. So type of the operon is also lac operon, TRP operon, ARA operon, His operon, Well operon, ठीक है। each operon has a specific operator, हर operon के पास एक specific operator होता है, एक specific repressor होता है, ठीक है। एंड लैक ऑपरेन का जीन का कॉन्स्टिट्यूशन और टीआरपी जीन का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से होता है, बस ध्यान में रखो कैसे होता है, ठीक है। ई ए बी सी डी ई एफ जी, इतना पार्ट तो सब में सेम है दोनों में। इसमें होता है जेड वाई ए, और इसमें होता है ए बी सी डी ई एफ जी, ई ए बी सी डी ई स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है। चलो, तो लैक ऑपरेन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लैक ऑपरेन are those genes which are regulated which are involved in the catabolism of lactose. लैक ऑपरेन में क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज को जो मैकेनिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं। बताओ, लैक्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है, और डाइसेक्राइड मतलब 2 यूनिट से बना होगा। पहला यूनिट है ग्लूकोज एंड दूसरा यूनिट है गैलेक्टोज। पहला यूनिट है ग्लूकोज और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड उसको तोड़ने के लिए कौन सा एग्जाम होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। साइडेज मींस एज लगा मतलब एंजाइम, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जीन को क्या करता है? ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ मींस कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। मींस ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ जाएगा, और ये ग्लूकोज हेल्प्स टू गिव द एनर्जी सच दैट इट कैन ओपन द ग्रोन ऑफ लैक ऑपरेन। नाउ लैक ऑपरेन, जीन्स ऑफ द लैक ऑपरेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, genes of the lac operon, I have already discussed about the genes of the lac operon. That is what? Regulatory gene, promoter. I is the regulatory gene, P is the promoter. P is also a promoter which is maybe present or not, okay. And this is the operator site, means ऑपरेटर पे कौन बाइंड करेगा? हमेशा याद रख लो, अगर रिप्रेसर साइट बाइंड कर रहा है मींस अगर ये जीन है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। अगर यहाँ कोई जीन प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड कर रहा है, तो इसके आगे वाला सारा जो भाग होता है वहां पे कोई प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं चलेगा। माइंड दैट पॉइंट एंड सारा चैप्टर खत्म हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, जहां और रिप्रेसर बाइंड करेगा उसके आगे कोई फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, अगर रिप्रेसर बाइंड किया तो, ठीक है। तो मैं वही बताऊंगा इसके मैकेनिज्म में, और सारा चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। बताओ, ये रेगुलेटरी जीन होता है, इसको इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं। ये एमआरएनए बना दिया, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनता है? एक रिप्रेसर प्रोटीन। तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि रिप्रेसर प्रोटीन कौन से जीन से बनता है? रेगुलेटरी जीन से या इनहिबिटरी जीन से? कैसे? इनहिबिटरी। ये एक्टिव कंडीशन में रिप्रेसर जीन रहता है। अगर रिप्रेसर जीन इस पे बाइंड कर गया मींस बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर जीन इज द बाइंडिंग साइट फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। Promoter is the binding site for RNA polymerase. Why RNA polymerase? Because RNA polymerase helps in the formation of RNA from the DNA. So if the RNA polymerase bind at the promoter site, then the mRNA will form and after the protein will form. मान लेते हैं कि RNA polymerase इस पे बाइंड कर जाता है, RNA polymerase इस पे बाइंड कर जाता है और स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज mRNA का फॉर्मेशन किया। पहले तो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए का फॉर्मेशन किया, और ट्रांसलेशन हुआ तो कितने तरह के प्रोटीन बनाया? 3 तरह का प्रोटीन बनाया। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज।
What are the functions of that enzymes? This is the very important point. The functions of the protein are beta galactoside. I already told you that that helps in the breakdown of the lactose into glucose and galactose. This is the simple. Now permease provide the permeability. From the name suggests that permease provide what? Permeability means this permease provide the lactose enter into the cell. This permease provide the lactose enter into the cell. And transacetylase means transfer acetyl group from acetyl coenzyme to the galactosidase, beta galactosidase. Let's see how it happens. Suppose that we have a culture medium in, and we have a cell. We have to make more large. Suppose this is a culture medium and we have a E. coli. This is the E. coli. Listen, understand in a very good manner, you will realize what will happen. More concept clear. This will clear you more concept. This is the culture medium. ठीक है, ये कल्चर मीडियम है. बताओ मैं जो डोनेट करूंगा वो L से क्या होगा? लैक्टोज, और P से क्या होगा? परमीएज. ठीक है, तो बताओ कल्चर मीडियम में बहुत सारा लैक्टोज पड़ा है. ठीक है, कल्चर मीडियम में इसको रखते हैं और बहुत सारा लैक्टोज पड़ा है. इस लैक्टोज को अंदर लाने के लिए कौन हेल्प करेगा? अंदर लाने के लिए परमीएज. कौन एंजाइम हेल्प करेगा? तो परमीएज कहाँ होगा? परमीएज कहाँ होगा? ये यहाँ होगा. ठीक है, ये परमीएज है. अब ये परमीएज क्या कर रहा है? इसको लैक्टोज को अंदर लाने में हेल्प करता है, मीन्स परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है. मतलब कहाँ चला गया? देखिए लैक्टोज अंदर आया. ठीक है, अब ये लैक्टोज को दो तरह में तोड़ना पड़ेगा, दो तरह से तोड़ना पड़ेगा. दो एंजाइम में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज. किस किस में तोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज एंड कौन से एंजाइम से बताओ? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अगर लैक्टोज पे बीटा गैलेक्टोसाइड एक्ट किया तो क्या क्या में टूट जाएगा वो? पहला तो ग्लूकोज बन जाएगा और दूसरा बनेगा गैलेक्टोज. ठीक है, अब बताओ, अब बीटा गैलेक्टोसाइड का फंक्शन मुझे पता चल गया. परमीएज का फंक्शन क्या है? लैक्टोज को अंदर लाना. अब लैक्टोज अंदर आ गया तो बीटा गैलेक्टोसाइड एक्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगा. इतनी बात समझ में आई. अब क्या होगा? अब एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें से क्या होता है? प्लस बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के बीच में को जोड़ने के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को जोड़ने के लिए एसिटाइल का जो ग्रुप होता है वो रिमूव करके इसमें जोड़ना क्या कहलाता है? कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? ट्रांस एसिटाइलेज. आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है. और इसका फिर क्या नाम हो जाएगा? एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज. दिस इज द point you have to remember. This is the function which go into the cell. ठीक है, अब मैकेनिज्म का डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म दो स्टेप में. अगर पहला चीज, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, या पहला चीज मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है. अगर पहले से लैक्टोज एब्सेंट है ना, तो मतलब जीन ऑफ है. ठीक है, इफ देयर इज अ नो लैक्टोज, लैक ऑपेरॉन रिमेन्स स्विच्ड ऑफ. मीन्स अगर लैक्टोज नहीं होगा तो स्विच ऑफ रहेगा. कोई ट्रांसलेशन, नो ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, रिमेन स्विच्ड ऑफ. द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज्ड एमआरएनए. देखो रेगुलेटर जीन है, ये एमआरएनए बनाएगा. इससे क्या बनेगा? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. और जब भी एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो ऑपरेटर पे जाके जुड़ेगा. मींस अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहेगा, और जब रिप्रेसर प्रोटीन इस पे जुड़ गया तो प्रोमोटर पे कोई भी चीज नहीं जुड़ सकता और आगे कोई फंक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, आगे कोई फंक्शन नहीं हो सकता. तो इसका यही फंक्शन है. अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, सॉरी, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन ऑफ है. मींस कोई ट्रांसलेशन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा. ठीक है,
मींस इस टाइम रिप्रेसर प्रोटीन बन जा रहा है और ऑपरेटर पे जाके जुड़ जा रहा है। ठीक है, बात आई, बात कॉन्सेप्ट समझ में ये? ठीक है, दिस प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन एंड ब्लॉक्स द आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज को मूवमेंट को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। मैं बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड कर गया। ठीक है, इसके बीच में कौन बाधा बन के आ गया? ये कौन सा रिप्रेसर प्रोटीन बाधा बन के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट। तो मैं ये बताया कि इसमें कि अगर ये जीन है, ठीक है, जेड वाई ये है ऑपरेटर, प्रोमोटर, इंड्यूसर, प्रोमोटर। ये इससे क्या बना रहा है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बन रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे जुड़ रहा है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज इससे नहीं जुड़ पा रहा। ठीक है, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आके जुड़ रहा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, मीन्स नो प्रोटीन फॉर्मेशन एंड जीन इज ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो इसका अलग सिनेरियो चलेगा। अब देखो, अब लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, इस समय भी रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा होगा। ठीक है, ये इंड्यूसेबल जीन्स का काम ही है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बन जा रहा। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है मीन्स ये इंड्यूसर का काम करेगा। ठीक है, क्या चीज काम करेगा? इंड्यूसर का। मीन्स ये इंड्यूस करेगा। कैसे इंड्यूस करेगा? ये क्या करता है, जो ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से जाके जुड़ जाता है लैक्टोज। ये लैक्टोज आके जुड़ गया एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में, और इसको क्या बना दिया? इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये नहीं जुड़ सकता ऑपरेटर में, अब ये ऑपरेटर में नहीं जुड़ सकता। ठीक है, अब जब ये ऑपरेटर में नहीं जुड़ सकता तो भाई साहब यहाँ पे ब्लॉक करने वाला, यहाँ पे कोई ब्लॉक करने वाला, यहाँ पे कोई ब्लॉक करने वाला है ही नहीं, मतलब आगे काम चल सकता है। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके जुड़ा, मीन्स एक फिटिंग सिस्टम नहीं होता, उस तरह का सिस्टम मान के चलो। ठीक है, आके जुड़ा भाई साहब, आगे का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, मतलब आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब आरएनए का फॉर्मेशन हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोटीन बनेगा, परमिएज बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। मीन्स अब ये जीन क्या है? ओपन है, मीन्स ये जीन क्या है? ऑन है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जा रहा है, और ग्लूकोज से क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी, और उसके आगे मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मीन्स लैक्टोज को तोड़ो। ठीक है, लैक्टोज को तोड़ना है, और देखो लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या? प्रोटीन है। ठीक है, तो वो प्रोटीन हमें चाहिए, बट क्या हो रहा था कि ये जो लैक्टोज पहले नहीं था ना, तो ये इंड्यूसेबल रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ प्रोमोटर पर जाके जुड़ रहा था, बाकी बीटा गैलेक्टोसाइड ही नहीं बन रहा, तो लैक्टोज और ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहाँ से बनेगा? तो अब क्या किया कि लैक्टोज प्रेजेंट है, ये एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट द लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, एंड ये इंड्यूसर जाके जुड़ता है ऑपरेटर एक्टिव रिप्रेसर के साथ, इसको इनएक्टिव करता है, और इनएक्टिव करने के बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और आगे का सारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो देखो, इफ लैक्टोज और एलोलैक्टोज इज प्रोवाइड इन द ग्रोथ मीडियम में दिया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेड इनटू द इकोलाई, और इकोलाई में ट्रांसपोर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ परमिएज के एक्शन से। लैक्टोज इंड्यूसर बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन, सो द रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा, और ऑपरेटर जीन्स बिकम्स द फ्री टू इंड्यूस द आरएनए पॉलीमरेज and binds to promoter, then the transcription starts. That's the point. Have you understand? This is the mechanism. Now, this is the mechanism, and one of the important question asked may be from that the 9 point I will discuss now. So this is the 9 point we have to remember in the mind, that first lac means what? Lactose. I genes is a consecutive genes. What are the type of I genes? मैं बोला कि कॉन्सिक्यूटिव जीन्स ऑलवेज ओपन रहता है, चाहे फंक्शन हो ना हो, मतलब ऑलवेज ओपन रहता है। आई जीन क्या फॉर्मेशन करता है?
रिप्रेशर प्रोटीन हमेशा बनता है, ठीक है, दोनों कंडीशन में, लैक्टोज प्रेजेंट था और लैक्टोज एब्सेंट था। तो लैक्टोज एब्सेंट था, जब एब्सेंट था तो इसमें जीन क्या था, ऑफ था, तो फिर भी रिप्रेशर प्रोटीन जाके बाइंड कर रहा था। लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड तो करता था लेकिन लैक्टोज के साथ, और जिसके कारण जीन ऑन हो जाता था, ठीक है। ZY जीन इज अ नॉन कॉन्जिक्यूटिव जीन, ये हमेशा देख रहे हो, ये हमेशा नॉन कॉन्जिक्यूटिव जीन हमेशा ओपन नहीं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव जीन को रेगुलेट करना पड़ता है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, लैक्टोज इज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। इंडिस्यूबल ऑपरेन है, क्या है, मतलब हम लोग लैक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं कि लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपरेन है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। इंड्यूसर इसमें कौन होता है, लैक्टोज, और रियल इंड्यूसर क्या होता है, एलोलैक्टोज। लैक्टोज मतलब एलोलैक्टोज ये आइसोमर है लैक्टोज का, ठीक है। At a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. Low level में भी एक्सप्रेस lac operon में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब लैक ऑपेरॉन में लो लेवल में भी लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट प्रेजेंट इंटर द सेल, मतलब कम मात्रा में होना चाहिए लैक्टोज, तभी अंदर करेगा, ठीक है। अब देखो, लैक ऑपेरॉन शो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, मोस्टली नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है, ठीक है। रेगुलेशन बाय रिप्रेशन प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव रेगुलेशन में मतलब होता है कि व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द डीएनए एंड स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जैसे कि रिप्रेसर प्रोटीन ऐसे बाइंड कर दिया, मतलब नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है, मतलब कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं आ रहा है, मींस ये रेगुलेटरी रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जांपल याद रखना। रेगुलेशन बाय पॉजिटिव रेगुलेशन, जब कोई भी रेगुलेशन मॉलिक्यूल बाइंड करता है डीएनए से और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अगर कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसको बोलते हैं कैप प्रोटीन या कैटाबॉलिक एक्टिव प्रोटीन। मान लो ग्लूकोज ज्यादा है तो सीएमपी ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑपेरॉन के बारे में। देखो, कभी भी ग्लूकोज हाई होगा, हाई लैक्टोज होगा तो जीन हमेशा ऑफ रहेगा। ग्लूकोज हाई होगा, लैक्टोज लो होगा तो जीन ऑफ रहेगा। लो ग्लूकोज हाई लैक्टोज, ग्लूकोज हमेशा कम मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, और हाई लैक्टोज जीन ऑन रहेगा। लो ग्लूकोज लो लैक्टोज एब्सेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लैक्टोज हाई होना चाहिए तभी जीन ऑन होता है, ठीक है। फॉर वर्किंग ऑफ आइडियल लैक ऑपेरॉन, लैक्टोज ज्यादा और ग्लूकोज कम, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसको इट कुड बी एक्सर्टेड ओनली एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, बट दिस लेवल में भी ऑल्सो भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होता है, एमआरएनए या एमआरएनए एचएनआरएनए मतलब एमआरएनए स्प्लाइसिंग करके ट्रांसपोर्ट करके इसका प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। So that's all about the lac operon. I think this is the very best explanation in my lecture. And if you like the video, then subscribe this channel and have a nice day.